નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 છે તેના જે મોડેલ પ્રશ્નપત્ર છે, મોસ્ટ આઈએમપી મોડેલ પ્રશ્નપત્ર, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. આ પ્રશ્નપત્રમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો જે છે તમારી પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રોએ જરૂરથી આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે મોડેલ પ્રશ્નપત્રનું તેનો અભ્યાસ કરી લેવો. આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ તમે મેળવી શકો છો. અને આ જે પ્રશ્નપત્ર છે એનું રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર, એટલે ફક્ત જે સવાલોવાળું પ્રશ્નપત્ર છે એ જો તમારે જોઈતું હોય તો એ પણ તમે મેળવી શકો છો. લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો આવા રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર અને તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના જે પ્રશ્નપત્રો છે તે આપણે તૈયાર કરેલા છે દરેક વિષયના ધોરણ 8ના. તો એની પણ લિંક તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 8નું જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 જે છે તેના હિન્દી વિષયનું જે મોસ્ટ આઈએમપી મોડેલ પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 અ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्रम अक्षर लिखिए, જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 અ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्रम अक्षर लिखिए. पहला सवाल, हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है. तो जवाब आवश्य विकल्प डी खाका. बीजू, महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जगह था. तो जवाब आवश्य विकल्प बी मरीचि. तीजू, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था. तो जवाब आवश्य विकल्प सी हुमायूं. चौथुं, अमीना खाली जगह अमीना का पोता था. तो जवाब आवश्य हामिद. मेनका कौन थी. तो जवाब आवश्य विकल्प बी अप्सरा. बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. एમાં પહેલું, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था. तो जवाब आवश्य उस्बाइन. बीजू, खाली जगह का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा. तो स्वर्ण. बुढ़िया के प्राण पक्षी खाली जगह में उड़ गए. तो अंत. चौथुं, इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है. तो स्नेह. पांचवुं, यह जरूरी है कि आप निरंतर खाली जगह अर्जित करते रहे. तो जवाब आवश्य ज्ञान. મિત્રો, તમારા માટે ખાસ જાહેરાત છે કે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 જે છે તેના માટે ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર આપણે તૈયાર કરેલા છે. અને આ બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્ર અહીંથી તમે મેળવી શકો છો. એક વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર જે વિદ્યાર્થીઓને તમે પરીક્ષા લેવા માટે આપી શકો છો, અથવા તો વિદ્યાર્થીઓ સ્વ અધ્યયન માટે અથવા તો સ્વ અભ્યાસ માટે લઈ શકે છે. તો એક પ્રશ્નપત્રની કિંમત એમાં 10 રૂપિયા છે એક વિષયના. એમાં બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન પણ ઉપલબ્ધ છે. ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 છે એના મોસ્ટ આઈએમપી જે રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર છે એના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પણ ઉપલબ્ધ છે. આ જે પ્રશ્નપત્ર હશે તેના એમાં એક સોલ્યુશનના માત્ર 10 રૂપિયા છે. તો આ તમામ સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને આ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો જરૂરથી આ તમામ પ્રશ્નપત્રો જે છે તે મેળવી લેવા. અને જો કોઈ જગ્યાએ અટવાતા હોય તો અહીંયા હેલ્પલાઇન નંબર આપેલો છે, જેમના ઉપર ફોન કરી અને તમે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી સહી વાક્यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, જેના કુલ 2 માર્ક્સ છે. पहला सवाल, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियाँ अलग थी, लेकिन जवाब आवश्य अ भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था. बीजू, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में. तो जवाब आवश्य विकल्प व अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं. ત્યાર પછી ડ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે. પહેલું, ममता कौन थी. तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी. बीजो सवाल, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब. तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे. त्रीजू, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है. ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है. चौथू, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए. दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी. पांचवं, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा. माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર બ અ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए. तो मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है. उसकी दृष्टि आकाश की ओर
गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई। बीजो सवाल, उठो धरा के अमर सपूतों कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कविता से हमें सीख मिलती है कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए જેના कुल 2 मार्क्स है। सर्वदमन क्या करना चाहता था? सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। ત્યાર પછી सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ममता की दृष्टि में उसका धर्म था। विकल्प क, अतिथि देव का सत्कार। तपस्विनी घबरा गई क्योंकि? तो क, उस बालक की बांह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। पहलू, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? तो बालक सर्वदमन की दाईं बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनियों ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्वियों ने कहा, यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वे बालक के पिता है। तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। ત્યાર પછી બીજો सवाल, सुनीता विलियम्स की तरह आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, क्यों? तो उत्तर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों को इलाज करना चाहती हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, बात कान पर न धरना, यानी कि बात अनसुनी करना। वाक्य, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरती। ત્યાર પછી બીજું, धोखा खा जाना, यानी कि मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। वाक्य, भोले भाले लोग पित्तल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरन तो हिरनी, नायक तो नायिका, गुरु तो गुरुआइन, मजदूर तो मजदूरनी। ત્યાર પછી कोष्टक में से दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। काउंस में मैं आप्યું છે तो जवाब आवश्य मेरा। यह काम खाली जगह लोगों ने किया तो जवाब आवश्य किन। ત્યાર પછી निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण का प्रकार लिखिए। सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो एમાં ऐतिहासिक एक गुणवाचक विशेषण। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया, 2 लीटर, तो ये परिणामवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल में फिर से लिखिए। पहलू, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो भविष्य काल बनाए तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा। मेहुल मुंबई गया था, तो वर्तमान काल में लखवानुं छे, तो मेहुल मुंबई जा रहा है। ત્યાર પછી निम्नलिखित शब्दों में से उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। विदेश तो विदेशी, पुत्र तो पुत्री, लापरवाह तो लापरवाही, यंत्र तो यांत्रिक। ત્યાર પછી निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को मुहावरों में परिवर्तित कीजिए। तो इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। लू चलने के कारण लता सूख गई है, तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए જેના कुल 6 मार्क्स है। तो આ પેરેગ્રાફ તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને જોઈએ પેરેગ્રાફ ઉપરથી પહેલો સવાલ। ઉપરોक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है?
तो उपरोक्त गद्यांश में समय को कीमती माना गया है। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? तो छात्रों को समय की कद्र करने से वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। त्रीजू, इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा समय की कीमत करनी चाहिए, तो ही हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। चौथुं, इस गद्यांश में विद्यार्थी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इस गद्यांश में विद्यार्थी के लिए छात्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, समय का महत्व। ત્યાર પછી જોઈએ निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लेकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चों की हत्या की शंका, नेवले ऊपर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો આ જે છે આ પ્રમાણે લખી શકીએ, ના સમજી और जल्दबाजी का नतीजा अथवा तो अविचार का परिणाम। तो आ प्रमाणे लखी શકીએ। जो किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाला से थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बेटा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। बच्चा है, वह एकदम आप से बाहर हो गई। अपने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ક, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। 15 सुयोग, बोरीवली पूर्व, मुंबई 400066, 6/10/2012। प्रिय मित्र राज, सब प्रेम, नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। अनाज महंगे हैं, दाल महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होंगी, तभी सबको सुलभ होंगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूंगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा प्रसाद परीख। મિત્રો, પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 જે છે એના માટે આપણે ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના જે મોસ્ટ આઈએમપી રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર છે તે બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર આપણે તૈયાર કરેલા છે અને આ પ્રશ્નપત્ર ખૂબ જ
તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થવાના છે, કારણ કે તેની અંદર આપણે જે ગયા વર્ષના જે પ્રશ્નપત્ર હોય છે અને જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો હોય છે તે આપણે લીધેલા છે. એક વિષયનું પ્રશ્નપત્ર જે છે એ તમે ફક્ત 10 રૂપિયાની અંદર મેળવી શકશો, તેની પ્રિન્ટ કઢાવી શકશો અને બાળકોને તમે આપી શકશો. અને મેળવવા માટે આ જે પ્રશ્નપત્ર છે એનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે, એટલે કે બધા જ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન પણ આપણે બનાવેલા છે. તો આ તમામ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન પણ તમે મેળવી શકો છો. એક સોલ્યુશનની માત્ર 10 રૂપિયા કિંમત છે અને આ તમામ રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર હોય કે એનું સોલ્યુશન હોય એ તમામની PDF પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જેમની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. અથવા તો જો કોઈ જગ્યાએ તમે અટવાતા હોય તો આ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર ફોન કરીને પણ તમે વધારે વિગત જાણી શકો છો. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर 125 शब्द में निबंध लिखिए. विज्ञान, वरदान या अभिशाप, जेना कुल 10 मार्क्स है. निबंध यहाँ अपन आपेलो है. जो प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं. एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है. विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं. विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है. ट्यूबलाइट, पंखे, AC, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है. डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने भी हमें दी है. टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं. फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है. इसी तरह विज्ञान ने हमें बहुत सारे भेंट दिए हैं, बहुत सारी खोजें दी है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. लेकिन उसी तरह विज्ञान ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी दी है जिससे पूरी मानव जाति विनाश हो सकती है. तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અહીંયા સરસ રીતે આખો જે નિબંધ છે તે દર્શાવેલો છે. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે. કુલ 6 માર્ક્સનો પેરેગ્રાફ છે, જેનું આપણે જે હિન્દી આપણને આપેલું છે, હિન્દીનું આપણે ગુજરાતીની અંદર ભાષાંતર કરવાનું છે. તો આ પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ. જુઓ, આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે. શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરી શકીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે. કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર આજે ધોરણ 8ના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 છે તેના માટેના તમામ પ્રકારના જે સંપૂર્ણ સોલ્યુશનવાળા જે પ્રશ્નપત્ર છે તે અને રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર, એટલે કે સોલ્યુશન અને રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર બંનેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે. તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો.